We are now live also. Live now also on Zoom. So participant count is increasing at 50, 60, 65. So let this number just settle in. इनकी जी for the timing आप अपना वीडियो स्विच ऑफ कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ स्टार्ट करना है? क्राउड सेटल हो जाए. Normally we do it in 5 minutes. Like Sorry? we can do it by 8586. I mean in 5 minutes. Okay. Harsh, you have disabled my video. We can start at 5:05, Serge. Yeah. Another minute or so. Let's, yeah. Facebook Live is working fine, right? Yeah. I am seeing Facebook Live parallelly. थोड़ा सा लैग रहेगा, maybe 4 to 5 second lag will be there. Yeah, not an issue. So it's 5:05. Let's start. Good evening and namaskar everyone. Welcome to another session of FADA Academy presents motivational series Joys of Family Life by Swami Gyanvatsal Das ji. May I now request our president Mr. Ashish Harshraj Kaleji to kindly welcome everyone. Good evening to all FADA members, their families and team members of the dealership, all those who are joining in today. This is the second webinar from FADA Academy. All those who were not present in the first one, I had briefed a bit about FADA Academy. So FADA Academy is the learning and analytics division of FADA. Within the FADA Academy, we do learning seminars to enhance the overall knowledge levels and exposure of our dealer members and their team members. And through the analytic wing, we also analyze the industry, the business, and how it can help us progress ahead in a better way. The first webinar that we did was under the analytical series. We had Dr. Anil Lamba talk about balance sheet and the importance of various financial parameters. Under the learning division, happy to tell you that today we are launching the motivational series. There will be many more talks under this series, which will help us to think positively and build up our confidence. Extremely happy that Swami Gyanvatsal Das ji has agreed to launch this motivational series for us today.
Swami Gyan Vatsal Das ji from BAPS Swami Narayan Sanstha has already spoken at our Auto Summit last year. It was a sold out session and one of the most hit keynote sessions of that day. Thank you so much, Swamiji, from all of us at FADA for accepting and giving the first talk under this motivational series. I'll request our Honorary Secretary Manish Raj Singhania to give an introduction of Swami Gyan Vatsal Das ji and then hand over the proceedings to him. Thank you so much to all who are attending, and I'm sure you'll have a very, very fruitful session. Have a good evening. Manish, over to you. By his profound knowledge and insights on a wide spectrum of subjects, Sadhu Gyan Vatsal Das ji has participated in various conferences and inspired millions of lives, millions of people across India, US, Europe, Canada, Australia, and New Zealand. He has been one of the most popular motivational speakers from BAPS, creating an everlasting positive impact in people's lives, transforming their intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. He served as an interpreter with earlier BAPS spiritual head, H.H. Pramukh Swami Maharaj Ji, in many of his religious world tours. He has been instrumental in carrying out many youth development and social cultural projects of BAPS at Vadodara, Gujarat, India. So I request all of you to kindly welcome Shri Sadhu Gyan Vatsal Das ji. नमस्कार। Namaskar everybody. Good evening. Hope I am properly audible to all. Yes, Swamiji, you are clearly audible. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। फिर से एक बार आप सभी को मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि लास्ट ईयर हम वहां दिल्ली में मिले थे, हमारा जो ऑटो एक्सपो था वहां पे, और एक अच्छा एक्सचेंज हुआ था। उसके बाद आज फिर से मनीष जी रायपुर से, उनका निमंत्रण था, प्रेम था आप सभी की ओर से, इसलिए आज फिर से यह मिलना हुआ है। और हम सब ये जानते हैं कि कोविड-19 की ये परिस्थिति है, हम सभी स्टे होम लॉकडाउन में हैं, पार्शियली थोड़ा खुला है, एसेंशियल सर्विसेज भी चालू हुई है और इकोनॉमिक जोन्स भी खुले हुए हैं। हम भी ऑफिस जा सकते हैं थोड़े घंटों के लिए, लेकिन 2-2.5 महीना हम सभी लॉकडाउन में रहें, स्टे होम में रहें, तो वैसे तो बहुत तकलीफ सभी को पड़ी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। कहीं लोग हैरान हुए हैं। ये हम जानते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना था, लेकिन एक हो गया, एक परिस्थिति आ गई। तो इसके बीच मनुष्य का हमेशा ये कर्तव्य रहा है कि परिस्थिति संजोग तो कोई भी आए जीवन में, स्थिर रहना, हंसते रहना, विचार के माध्यम से अपने आप को संभाल लेना, ये एक मनुष्य का कर्तव्य हमेशा रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से हम मलेरिया के साथ जीते हैं, टाइफाइड के साथ जीते हैं, या कोल्ड फीवर या ऐसी बीमारियां के साथ हम जीते, वो एक समाज का एक अविभाज्य अंग है। उसी तरह अब ये सभी का कहना है कि कोरोना वायरस इज आल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट विल रिमेन विथ अस फॉरएवर। ऑफ कोर्स, जिस तरह से अन्य रोगों के लिए दवा है, वैक्सीन है, इस तरह इसके लिए भी वैक्सीन और दवाएं जरूर हम शायद 2-3 महीने में मैक्सिमम अपेक्षा रखते हैं कि सभी को उपलब्ध हो जाए। तब तक थोड़ा और ज्यादा संभालना है, लेकिन इसके बाद भी संभालना तो है ही।
जिस तरह से अन्य रोग से हम अपने आप को संभालते हैं, लेकिन it is here to stay. Coronavirus is here to stay. जहां से भी निकला, वुहान के वेट मार्केट में से निकला या वुहान के लैब में से निकला, ये हमारे बीच रहने के लिए आ गया है। लेकिन 2-2.5 महीने में हम जब हमारे परिवार के साथ रहे, हम सभी ने पारिवारिक जीवन का, पारिवारिक आनंद का अनुभव किया। So the topic for today, the joys of family life, पारिवारिक जीवन का एक आनंद। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपको शायद ये हो सकता है कि हम तो संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, we are not married, we don't have a family। एक जो परिवार था वो भी हम छोड़ के दीक्षा मतलब संत बने। How can we talk on family values? How can we talk on joys of family life? लेकिन BAPS स्वामीनारायण संस्था में आप सभी स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली तो गए ही होंगे। वहां एक सिलसिला है, एक परंपरा है भगवान स्वामीनारायण के वक्त से 200 साल से, कि हमारे संत घर घर जाते हैं, स्पेशली चातुर्मास में हर एक घर में 20-25 मिनट आधा घंटा हम बैठते हैं, परिवार के साथ विमर्श करते हैं, उनके कोई प्रश्न हो तो सुझाव के लिए कुछ चर्चा करते हैं। तो पारिवारिक जीवन बहुत नजदीक से हमने देखा है। हमारे गुरु हरि थे प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई। जैसे आपकी FADA एक संस्था है, ऐसे ये BAPS is among the top 10 NGOs of the world, permanent seat in the United Nations as an NGO. And we have about 162 different kinds of social, cultural, environmental, moral, medical activities all over the world, जिसके लिए देश में परदेश में यूनो तक इस संस्था को कई प्रकार की प्रसिद्धियां मिली हैं। तो ये संस्था को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा कार्य, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ, और जिनको हम सफलता का यश दे सके, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज थे, जो अभी 3-3.5 साल पहले इस मुकाम पधारे। He traveled to more than about like 60 countries and 18,000 villages and personally visited more than 3.5 lakh homes. 3.5 लाख परिवार को विजिट किया, उन्होंने उनके साथ बैठे, तो उनका जो अमृत अनुभव है वो आपसे शेयर। और मैं भी पिछले 30 साल में in more than 30 countries of the world, I've personally met and sat with more than about 25,000 families and discussed a lot with them, from family values to generation gap, to teenage issues, to youth problems, to addiction related issues. तो ये सभी बातें हमने कई प्रकार के पुस्तक की संस्था में से इन संतों के अनुभव के प्रकाशित भी किए हैं। तो इन सभी को लेते हुए जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि द ग्रेटेस्ट जॉय ऑन दिस अर्थ इज द जॉय ऑफ फैमिली लाइफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे किया था, 110 देशों में किया था, 1 लाख परिवार में किया था। 8 साल तक ये सर्वे चला था, और ये सर्वे का मुख्य मकसद तो ये था कि लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ये इस पृथ्वी पे जीवन का सबसे बड़ा आनंद, उसकी व्याख्या क्या है। तब जाके जब उन्होंने कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार किया, तब कंक्लूजन रिपोर्ट में ये लिखा गया कि the greatest joy upon this earth is the joy of family life। जिन परिवारजनों के प्रति आपको प्रेम और आदर है, उन परिवारजनों को आपके प्रति भी प्रेम और आनंद है। इन सभी के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम बिताना, वो इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है। तो ये बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे सर्वे से हमें बात की, और जैसे मैंने पहले बताया था कि हम भी ये बात करते हैं आपके साथ। तो कई बार ये होता है कि द कोच एंड द मैनेजर हु हैज नॉट प्लेड द गेम टू दैट लेवल नोज द गेम मच मोर। हेलो, ऑडिबल? Yes, Swamiji, you're audible. Please carry on. Fine. So, as I said, sometimes the managers and the coach who have not played the game of that level, they know the game well. आप
यूरोप में सॉकर टीम्स देखे, उन सभी के जो कोचेस हैं, मैनेजर्स हैं, वो शायद इस लेवल का सॉकर कभी नहीं खेले, लेकिन दे कैन लीड देयर टीम्स टू चैंपियनशिप इनिंग। आप इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल भी देखे तो वहां भी सॉकर की जो टीम्स, उनके कोचेस कभी शायद इस प्रकार की या इस लेवल की गेम नहीं खेले। आप ओलंपिक मेडलिस्ट को मिले तो 70% ऑफ द ओलंपिक मेडलिस्ट, their coaches, they haven't played Olympics, but they know the game well by observing the game and analyzing the game. ये दो शब्द यह मैंने इसलिए प्रयोग किए कि हम भी शायद पारिवारिक जीवन में सीधा नहीं है, लेकिन observing family values and analyzing family values, perhaps you have got some insights into it. तो सबसे पहली बात है पारिवारिक जीवन में, जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में, कि ये ऑडियो नॉट क्लियर ऐसा मैसेज आ रहा है चैट पे। स्वामी जी, ऑडियो में कोई इशू नहीं है, मे बी उनके नेटवर्क में इशू होगा स्वामी जी। योर ऑडियो इज वेरी गुड। Okay, then I'll now not interrupt. I'll straight away continue throughout. तो सबसे पहली बात है जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में कि you have to introspect where I need to change myself to adjust to my family. मैं परिवारजनों को अनुकूल हो जाऊं, इसके लिए मुझे मेरे जीवन में कहाँ परिवर्तन लाना है। मेरी कुछ आदत में, बोलचाल में, उठ बैठ में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, उठने में, सोने में, कोई ऐसे समय की दृष्टि से कोई ऐसी आदत हो, या कोई अभिगम की दृष्टि से, कोई वर्तन की दृष्टि से ऐसी कोई आदत हो जहां मुझे बदलाव लाना है, तो मैं वो बदलाव किस तरह से लाऊं। फर्स्ट is the need to improve yourself in some aspect that you become a better family member. और इम्प्रूवमेंट तो सभी जगह पे, लेकिन बेसिकली हमारा एटीट्यूड ये होता है कि मैं सही हूँ, मैं ही सच हूँ, मेरी विचारधारा भी परफेक्ट है, मेरा वर्तन भी ठीक है, जो भी तकलीफ परिवार में है वो अन्यों के हिसाब से है, मैं तो ठीक ही हूँ। सभी को ऐसा मानते हैं, तो सबको अगर ऐसा माने तो भी कोई किस प्रकार का सुधार तो होने ही नहीं वाला है। तो इम्प्रूवमेंट इज इनएविटेबल, चेंज इज नेसेसरी to bring positivity for people. 1986 में हमारे जो गुरु हरि अभी परम पूज्य महान स्वामी महाराज, वे वहां पूरा संत मंडल लेके प्रदेश पधारे थे, और प्रदेश जाने का मुख्य मकसद तो ये था कि जो गांधीनगर में हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम बन रहा था उस वक्त, जैसे दिल्ली में अक्षरधाम है, वैसे बड़ा अक्षरधाम गांधीनगर में बन रहा था। टॉकिंग ऑफ द मिड 80s एंड लेट 80s। तो सभी देश में कोई अच्छे म्यूजियम हो, कोई अच्छे मॉन्यूमेंट हो, वहां पधारे, निरीक्षण करे, कुछ देखे, ताकि वहां से अच्छी चीजें हम यहाँ अक्षरधाम में प्रदर्शन के लिए या अन्य कोई व्यवस्था में प्रेजेंटेशन के लिए ला सके। तो मॉन्यूमेंट्स देखते थे, म्यूजियम्स देखते थे, म्यूजियम के क्यूरेटर्स को भी मिलते थे। उसमें घूमते घूमते वे जर्मनी भी गए। जर्मनी में वहां स्टटगार्ड में जहाँ मर्सिडीज बेंज गाड़ी बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वे यहाँ पधारे। मकसद तो ये था कि ये लोग किस प्रकार से गाड़ी में भी सुधार लाते हैं, किस विचार से लाते हैं, ताकि पैसेंजर को, ड्राइवर को ज्यादा अनुकूलता हो। एक गाइड दिया गया, गाइड ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सभी संतों को दिखाया, और बार बार ये गाइड यही बोलते थे कि स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव चेंज। तो उस वक्त, तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नया था कि अगर एक्सीडेंट हो तो एक बलून निकल आता है स्टीयरिंग और ड्राइवर की छाती के बीच, और ये स्टीयरिंग जो लंग्स को फाड़ देता है एक्सीडेंट में, शायद ऐसा होता है, तो वो ना हो और ड्राइवर की जान बच जाए। और अगली सीट में उनके साथ जो पैसेंजर बैठे उनको, उनके लिए भी ये सुविधा सोची जा रही थी। ये सभी बात उस वक्त बहुत नई थी, आश्चर्यकारक थी। ये सभी बात गाइड ने बताई, और फिर भी ये बोलते रहे कि स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव। और एक बार तो ये बोले कि स्टिल वी फील दैट वी नीड टू अबाउट लाइक 90% इम्प्रूवमेंट। सभी को बहुत आश्चर्य लगा था। हमारे कोई संत ने पूछा कि आप तो बहुत गहराई तक सोचते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा मुख्य मकसद तो यह है कि अगर एक्सीडेंट हो तो गाड़ी को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति जो अंदर बैठे वो किसी भी हाल में बच जाने चाहिए। जब हमारे कोई संत ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कि हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट कौन करता है? गाड़ी करती है या व्यक्ति करता है? तब तो गाइड ने बताया कि स्वामी जी एक्सीडेंट तो गाड़ी करती है, मत और सॉरी एक्सीडेंट तो व्यक्ति करता है। तो हमारे सामने कहा कि सुधार ज्यादा कहाँ करना है, गाड़ी में और या व्यक्ति में? गाड़ी में तो आपने उत्तम व्यवस्था दी है, आप सभी गाड़ी वाले बैठे हो, इसलिए मैंने गाड़ी का दृष्टांत दिया है। कहीं मर्सिडीज वाले भी बैठे होंगे, हमारे होंगे शायद शैलेश काछेली मुंबई से। तो ये लोग बोले कि गाड़ी में तो हम सुधार जरूर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात सही है कि व्यक्ति में ज्यादा सुधार करना है, चेंज लाना है, इम्प्रूव करना है। व्यक्ति नशे की हालत में ना गाड़ी चलाए, व्यक्ति वो को टेंशन या स्ट्रेस की परिस्थिति में गाड़ी ना चलाए, व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त और कोई विचार में चला ना जाए, या रेडियो या स्क्रीन चालू ना कर दे, उसमें उसका कंसंट्रेशन अटेंशन चला ना जाए। ये सभी बातें उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत है। तो हमारे संत ने कहा कि आपकी बात भी सही है, गाड़ी में भी जितना भी सुधार हो सके करना ही है। और हम संत हैं वो ये करते हैं कि हम मनुष्य में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं, कोई अच्छी बात से, अच्छे विचार से, अच्छे उपदेश से। So the first and the important aspect of choice of family life is that you need to introspect where you need to improve yourself, make a positive change in your life so that you become a better family member. तो ये प्रवचन के बाद, ये सेशन के बाद आप सभी अंतर्दृष्टि करना कि एक छोटा सा चेंज मुझे आज ही शाम से, आज ही रात से या कल सुबह से करना है, ताकि मैं एक बेटर फैमिली मेंबर बन सकूं। कोई फैमिली को डिनर के वक्त ज्वाइन हो जाने का संकल्प करेगा, कोई रात को देरी तक टीवी न देखने का संकल्प करेगा, कोई है वो रात को डिनर के बाद फैमिली के साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठने का संकल्प करेगा। तो ऐसा कोई संकल्प आप करना, a small change in yourself that can be visible, that can be experienced by the rest of the family members, so that they also get an inspiration to change. उनको भी एक प्रेरणा मिले, और सभी एक दो चेंज कर दे तो इतनी बात होती है, खुशी आपकी 2 गुनी बढ़ जाएगी। Did you get my point? Just 1 or 2 positive change by each and every family member to adjust to the rest can double your joy in the family. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये डेफिनेशन आपको ज्यादा फलीभूत हो जाएगी परिवार में कि दी मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द जॉय ऑफ फैमिली लाइफ। एक ये बात है। दूसरी बात जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में ये है कि आप परिवार के मुख्य हो, तो आप एक सभी के साथ उनके जैसे ही सदस्य बन के जीने का हमेशा प्रयत्न करते रहना। बिकॉज यू आर द ब्रेड विनर इन द फैमिली। कभी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरा कहा ही सब माने, मैं जिस प्रकार का विचार प्रस्ताव रखो उसी का अनुसरण सभी करें, और एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट मी। हाँ, एक प्रेम भावना से ये विचार शायद रहे तो ठीक है, लेकिन बहुत अपेक्षा या स्टेटस या आईनेस से, अहम भाव से वो रहे, वो जरा ठीक नहीं है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको आज सुनाना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा पुस्तक मैंने अभी पढ़ा यही लॉकडाउन में। पुस्तक का नाम है एवरीमैन्स मिशन, और पुस्तक की लेखिका है रेबेका बियर। शी हैज रिटन दिस बुक वंडरफुल। इसमें एक प्रसंग ये लेखिका ने लिखा है कि एक बार कोई समारोह में कोई महिला उनको मिली। महिला के घुटनों में दर्द था, मतलब शी हैड आर्थराइटिस। तो महिला जानती थी कि ये रेबेका बियर एक अच्छी लेखिका है, विचारशील व्यक्ति हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़े फिलोसोफर भी हैं, और काउंसलिंग भी ये रेबेका करती है। तो थोड़ा प्रॉब्लम अपना सुनाया, और रेबेका बियर ने कहा कि अभी तो कुछ समारोह है, कल सुबह आप ऑफिस आना, हम जरूर मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह मुलाकात हुई, और रेबेका बियर ने तो उनको पूछा कि आर्थराइटिस के प्रॉब्लम के बारे में। जब उन्होंने ये बात बताई तो ये महिला ने कहा कि मैं दवाई तो ले रही हूँ 2-3 महीने से, और एक ऑपरेशन भी करवाया है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब रेबेका बियर ने एक काउंसलिंग की दृष्टि से, थोड़ा साइकोलॉजी की दृष्टि से उनके साथ प्रश्न उत्तर चालू किया। थोड़े प्रश्न पूछे, फैमिली, परिवार में संबंध कैसे हैं, बर्ताव कैसा है, अभिगम, एटीट्यूड कैसा है।
तब जाके ये प्रश्नों के उत्तर से रेबेका बियर्ड को ये पता चला कि ये जो महिला है, वो मुख्य ब्रेड विनर है, परिवार में मुख्य व्यक्ति है, और उनका ये थोड़ा आग्रह रहता है कि परिवार में सब उनको इस दृष्टि से देखे कि शी इज द मेन ब्रेड विनर ऑफ आवर फैमिली। ये भी थोड़ा आग्रह रहता है कि सब उनको थोड़ा इस दृष्टि से मान सम्मान दे। ये भी आग्रह रहता है कि उनके जो विचार है वो परिवारजन सभी अनुसरण अनुसरण करे। और ये भी विचार रहता है कि सब कोई जो उनकी कही बात है वो माने। और जब ये नहीं होता है, और हम जानते हैं परिवार में एक व्यक्ति का तो हर समय सब कुछ तो नहीं चलता है, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। इसके मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि जो मुख्य व्यक्ति है उनका न माने, लेकिन सभी के विचार होते हैं, सभी के अपने अभिगम होते हैं, सभी के अपने समय, अपनी प्रवृत्ति होती है। तो हर बार तो ये शक्य नहीं है। तो इस हिसाब से जब ये नहीं होता था, तब इनके मन में, रेबेका बियर्ड ने ये लिखा है प्रसंग कि ये महिला के मन में क्रोध आ जाता था, स्ट्रेस रहता था, टेंशन रहता था, और कभी कभी रात को नींद भी बिगड़ जाती थी। तब रेबेका बियर्ड ने उनको एक अच्छी बात सिखाई, इसी यू स्टॉप दिस एंड स्टॉप दिस फ्रॉम विद इन। अंदर से आप ये बात बंद कर दें कि मैं कोई भी प्रकार का आग्रह नहीं रखूंगी कि परिवार में सब मेरा कहा माने और मुझे ये मान सम्मान दे। I will be an ordinary family member with the rest of them as they are. बहुत ये बात कठिन थी ये महिला के लिए, लेकिन रेबेका बियर्ड ने कहा कि ये एक ही प्रयोग आपके लिए बाकी है, ये आर्थराइटिस के लिए उसको क्योर करने के लिए, तो आप ये भी प्रयत्न कर लें। तब ये प्रार्थना सिखाई और कहा कि आप रोज सुबह ये प्रार्थना करना कि I will never insist this to happen in my family. दूसरी प्रार्थना सिखाई ये रेबेका बियर्ड ने ये महिला को कि I will always pray and I will always try to give love to my family. सिर्फ प्रेम 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 ही मैं मेरे परिवार को दूंगी। तो ये दो बातें लेके वो महिला वहां से गई, रोज सुबह ये प्रार्थना शुरू की और ये इस प्रकार का एक अभिगम बनाया और ये वर्ताव चालू किया। आप सभी को जान के ताज्जुब लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि 1-1.5 हफ्ते में ही उनका आर्थराइटिस संपूर्ण क्योर हो गया, किसी भी प्रकार का पेन नहीं रहा। ये बात एक हकीकत है, ये कोई ऐसी मन की गढ़न की बात नहीं है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड दैट 90% ऑफ आवर डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। मतलब 90% जो रोग शरीर में होते हैं वो साइकोसोमैटिक है। मतलब आपका मन अस्वस्थ है, इसके लिए आपके शरीर में भी अस्वस्थता आ जाती है। मन में तनाव है, इसलिए शरीर में रोग आ जाते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और साइंस तो ये भी लिखता है कि कैंसर तक की बात भी आ सकती है। या आपका मन, आप क्रॉनिक एंगर में रहते हो, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, मतलब छोटे छोटे प्रसंग में आप तनाव में आ जाते हो, छोटे छोटे प्रसंग में आप गुस्से में आ जाते हो, छोटे छोटे प्रसंग में आप नाराज हो जाते हो। ये बार बार दिन में 2-4-5 बार रोज बनता है, तो 15-25 साल में आपको ये सब बीमारियां लग जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, ऐसी कोई सिर्फ फिलॉसफी की दृष्टि से या हमारे बड़े महाऋषियों ने ये बात तो की है, लेकिन हम मानते नहीं थे। जब विज्ञान ने ये बात बताई तब हम मानने लगे। तो 90% ऑफ आवर डिजीज आर साइकोसोमैटिक। तो परिवार से ही ये रोग शुरू होते हैं, ये भी एक रिसर्च है, क्योंकि परिवार से ही ज्यादा अपेक्षा होती है। तो परिवार में हम रहते हैं, बिना अपेक्षा हम रहे, सभी के साथ एक सामान्य सदस्य बनकर रहें। हम सब एक हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई जुदाई नहीं है। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही परिवार में हैं। भगवान की कृपा से साथ में आए हैं, माता पिता के रूप में, माता पिता बच्चों के रूप में, भाई बहन या सास ससुर के रूप में हम एक ही भगवान की कृपा से हम साथ में आए। कोई कर्मा बंधन था तो साथ में आए। इस प्रकार का एक शुद्ध भाव रखते हुए परिवार में हम साथ में रहे, तो आप और आपके परिवारजन कई प्रकार के इस प्रकार के रोग से आप बच जाएंगे। तो जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में ये दूसरी बात है, बी वन विथ योर फैमिली
be an inseparable part of your family, bring oneness in the family to the extent that everybody feels that we are one and inseparable. तो आपके बहुत लाभ आएगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारी संस्था में हमें ये बात सिखाई है। हम 1200 संत, और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि कोई आदिवासी विस्तार में से कोई कम पढ़े हो, ऐसे भी हमारे संत हैं, और अमेरिका में वहां डबल ग्रेजुएट हुए हो, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल ऐसे इंस्टीट्यूट में से एमबीए हो, ऐसे भी संत हैं। ये पूरी रेंज है, लेकिन सबको साथ रख पाए, प्रेम से रख पाए, सबको अपनी अपने हिसाब से, अपनी अपनी कक्षा से, क्षमता से प्रमुख स्वामी महाराज उन सभी को इस संस्था की छोटी मोटी सभी सेवा में जोड़ दिए। आज सभी कोई आनंद से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। जब एक दूसरे का रोज सुबह चरण स्पर्श करते हैं, जैसे हम बड़ौदा में यहाँ 40 संत रहते हैं, 40 से सब, जैसे मैंने आपको रेंज बताई, फुल रेंज में है। तो ये पूरी रेंज में सब संत हैं, तो सब प्रेम से एक दूसरे को चरण स्पर्श रोज सुबह में करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, ऑफकोर्स कोई ज्ञाति भेद नहीं। तो हम भी जो एक परिवार यहाँ रहते हैं, तो ये भावना से रहते हैं कि वी आर वन, वी आर इंसेपरेबल, वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो कोई ईगो का प्रश्न नहीं, कोई एटीट्यूड का प्रश्न नहीं, कोई जुदाई का प्रश्न नहीं, कोई पक्षभाव का प्रश्न नहीं। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्था में ये कल्चर डेवलप किया हमारे संत समाज में। अब हम सब सुखी हैं, आनंद से रहते हैं। तो ये बात शायद आपको समझने में, या ये बात एक्चुअली परिवार में इसका कितना महत्व है, वो शायद आप में से कहीं को मालूम होगा, या जानकारी होगी, या महसूस भी होता होगा, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फैमिली लाइफ। तीसरी एक बड़ी बात है जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में, जब 2 जनरेशन साथ में रहती है, तब जनरेशन गैप का बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो ये जनरेशन गैप जो है वो मिटाना जरूरी है। अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत, और वो है, when your son's foot sets into your shoe, that is fits into your shoe, he is no longer your son, he is your friend. वो आपका मित्र बन जाता है। तो आपके बच्चे भी अपर टीनेज में आए, मतलब 17, 18, 19 में आ जाए, यूथ एज में आ जाए, 21, 22, 23 में आ जाए, तो एक मित्र भाव से बर्ताव, एक अच्छा एक्सचेंज, ओपिनियंस हो, सजेशंस हो, थॉट प्रोसेसेस हो, बैठना, बातें करना, एक्सचेंज करना, ये कल्चर परिवार में डेवलप करना बहुत जरूरी है। और यही अभी 21वीं सदी में ये पीरियड ऐसा चल रहा है कि वी आर इन अ कॉन्फ्लुएंस स्टेज। 25 साल के बाद ये सुधर जाएगा। कॉन्फ्लुएंस स्टेज क्या है कि हमारी अगली जो पीढ़ी है, जो अभी जिसकी उम्र 50, 60, 70 है, वो कम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और ये कहीं शहरों में ये पहली पीढ़ी है जो गांव से आके कुछ काम किया, कुछ धंधा विकास किया, और उनके जो भी बच्चे हैं, जो हुआ इन देयर अपर टीन्स, अर्ली यूथ, 20-25 के बीच हैं, अच्छे पढ़े लिखे क्योंकि शहर में पैदा हुए। तो आज लाखों परिवार ऐसे हैं कि जिनकी फर्स्ट जनरेशन शहर में पैदा हुई है, मतलब दे आर बोर्न एंड रेज्ड इन द सिटी। तो एक कॉन्फ्लुएंस जनरेशन है, विचारधारा की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, वर्ताव की दृष्टि से, कस्टम्स ट्रेडिशंस की दृष्टि से। तो जनरेशन गैप सबसे ज्यादा अभी इस टाइम्स में, दिस आर द टाइम्स वेयर यू हैव द मैक्सिमम जनरेशन गैप। तो उसके लिए परिवार में कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। नई पीढ़ी ये कहती है कि आप समझ नहीं पा रहे हो हमको, और अगली पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी, ये कहती है कि ये कस्टम है, ट्रेडिशन है, बिना क्वेश्चन इसको फॉलो करो। तो इस प्रकार के कई प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के बीच दोनों को समझना है। जो सीनियर जनरेशन है, उनको नई पीढ़ी के विचार सुनने हैं, समझने हैं, और नई पीढ़ी का जो फंक्शनिंग है, नई पीढ़ी का जो ओपननेस है,
नई पीढ़ी का जो एक समाज के प्रति मतलब सोशल होने का जो एक लगाव है वो अच्छी तरह से समझना है, और नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का कल्चर और ट्रेडिशन का आग्रह समझना है कि दिस आर द रूट्स ऑफ द फैमिली, दिस आर द रूट्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से चलना है, मतलब ट्रेडिशन कल्चर और मॉडर्न डे साइंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से चाहिए। और एक दृष्टि से देखें तो हमारी ये पीढ़ी भाग्यशाली है कि हमको ये कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। जैसे मैंने कहा 25 साल के बाद तो ये कॉन्फ्रेंस नेचुरल हो जाएगा। तो जब पढ़ाई की बात आती है, जब बिजनेस की बात आती है, आप में से सभी मतलब आप सभी को एक बिजनेस है, आप ऑटोमोबाइल डीलर्स हो, आपका अपना शोरूम है, आप गाड़ी बेचते हो, तो आपके मन में रहेगा कि मेरा लड़का ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जाए, और शायद जुड़ जाए तो अच्छी भी बात है और परिवार के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके विचार में यह आए कि मुझे तो अमेरिका से एमबीए करना है कुछ, या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जाना है, मतलब होटल रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना है, तो देखो जिस तरह से आपने अपने धंधे का एक एक बात शुरू की, आपने अपना धंधा चूज किया, उसी तरह यू हैव टू बी ओपन टू गिव अ चॉइस टू देम। नाउ दिस इज समथिंग हार्ड दैट आई एम टॉकिंग, लेकिन यू नीड टू गिव अ चॉइस। अगर उसकी इच्छा नहीं है आपके धंधे में आने की, आप प्रयत्न भी कर लेना, समझाना भी सही, शायद आपको जो ठीक लगे वो। लेकिन अगर उसका आग्रह है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीए करके मुंबई में जाना है, परदेश में, आई वांट टू स्टे इन यूएस इन फ्यूचर, आई वांट टू मेक माय लाइफ देयर, माय प्रोफेशनल करियर देयर, तो एक स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। करते हैं सभी, अच्छे परिवार में सभी करते हैं, लेकिन कई परिवार में ये तकलीफ आ जाती है। तो बहुत ध्यान रखना कि इससे बहुत बड़ी गलती ना हो जाए। एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुंबई में एक अजीत नाबर नाम का लड़का था, बहुत तेजस्वी था एकेडमिकली, ही वाज एक्सीलेंटली स्कोरिंग ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल डेज, हायर सेकेंडरी डेज, और 12th स्टैंडर्ड में हायर सेकेंडरी बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, he was among the top 10. His wish was to become a doctor, and his family's wish, especially his father's wish, was to become a mechanical engineer. क्योंकि फादर की एक पुरानी इच्छा बाकी रह गई थी अपने जीवन की, उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, लेकिन परिवार में जो भी वजह होगी वे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए उनका एक अधूरा सपना था। वो उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का मेरा ये सपना पूरा करे, तो अपनी ये इच्छा वो अपने लड़के के सर पे ठोक बिठाना चाहते थे। अब लड़के की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और ओपन हार्ट सर्जन बनूं, मुझे बाईपास ऑपरेशंस करने हैं। लेकिन काफी झगड़े भी हुए, फ्रिक्शन भी हुए, और पिताजी ने स्ट्रिक्टली यही कह दिया कि तुझे इंजीनियर बनना है। सो ही अपीयर्ड फॉर द ओपन टेस्ट, क्वालिफाइड फॉर आईआईटी, गॉट एडमिशन इन आईआईटी पवई, मुंबई, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन उसका मन नहीं था। कॉलेज में गया, वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, उसका मन ही नहीं लग रहा। उसके मन में तो डॉक्टर बनने का ख्वाब। बना ये कि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, दूसरे सेमेस्टर में फेल हुआ, और 3-4 सब्जेक्ट में, मतलब ही फेल द फर्स्ट ईयर। फिर ट्यूशन रखे, ये वो, फिर से अपियर हुए, तो सेकंड ईयर में गया, फिर से थर्ड सेमेस्टर में मैं फेल हुआ, क्योंकि उसका मन ही नहीं था। अब एक दिन जाके क्या हुआ कि गैलरी में, अब ये प्रसंग सुनना ठीक से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत रोमांचक ये बात है, लेकिन दुखता ही है, लेकिन प्रेरणा देने वाली है, एक सीख देने वाली ये बात है। एक बार अजीत नाबर ऐसे ही लॉबी में अपने मित्र के साथ कॉलेज में खड़ा था, वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो अप्लाइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर में, उसके प्रोफेसर वहां से गुजर रहे थे, प्रोफेसर ने अजीत नाबर को देखा। प्रोफेसर ने कमेंट पास की कि अजीत, हाउ आर यू गोइंग टू फेयर इन योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में से तो आपको 40 में से 0 थे, और फाइनल एग्जाम्स में 60 मार्क्स में से एक्सटर्नल एग्जाम्स में आपको 40 तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, वरना तो आप फेल हो जाओगे। आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। लेकिन मुझे पता है कि आप 60 में से 40 तो नहीं कर पाओगे, और यू आर गोइंग टू फेल। ऐसा बोलते बोलते वे हंसने लगे, और साथ में उनके मित्र जो खड़े थे लॉबी में, वे भी थोड़ा हंसे।
अजीत नाबर ने कहा कि सर ये मेरा मन नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज आई हैव द कैलिबर, आई कैन स्कोर। प्रोफेसर ने कहा कि क्या तुम बात करते हो, फर्स्ट ईयर में भी आपने रिपीट किया है और सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट लेके आए हो, मतलब 3 ईटीकेटी लेके आए हो, क्या करने वाले हो आप? और इस प्रकार की कमेंट पास की। अजीत के अंतर में जो कैलिबर था वो खिल उठा। अजीत ने कहा सर व्हाट इज योर नेशनल रिकॉर्ड आउट ऑफ 16 अप्लाइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटीज? तो क्या सर ने कहा कि ये 52 आउट ऑफ 60 ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। अजीत नाबर ने कहा कि सर टेक दिस फ्रॉम मी टुडे, आई विल स्कोर 60 ऑन 60। प्रोफेसर तो हंसने लगे कि कौन से बुक्स रेफर कर रही है, वो भी तुझे पता है कि नहीं? सर वो जो भी है मैं कर लूंगा। सीधा वहां से लाइब्रेरी में गया, रेफरेंस बुक्स निकाली, पढ़ना चालू कर दिया। 15 दिन के बाद एग्जाम में अपेयर हुआ और अच्छी तरह से अप्लाइड मैकेनिक्स के पेपर में सब कुछ लिखा। और जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए तब अजीत हैड स्कोर्ड 60 ऑन 60 अप्लाइड मैकेनिक्स, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी पवन। बाकी के तीनों सब्जेक्ट में फिर से फेल, वही एग्जाम, मन ही नहीं था। और दुख की बात तो यह है कि फोर्थ सेमेस्टर में भी वो फेल हुआ और सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट ले लिया। और आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तब मुंबई में एक गैरेज में गाड़ी रिपेयर करने का, गाड़ी के बिजनेस में हो इसलिए मैंने गाड़ी का दूसरा दृष्टांत दिया। उस माध्यम से मैं आपको फैमिली चॉइस समझाना चाहूंगा कि गाड़ी जो रिपेयर होती है गैरेज में, उस गैरेज में मैकेनिक के रूप में एक सामान्य नौकरी अजीत नाबर, जो लड़का 12th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में था, जो लड़का आईआईटी के लिए क्वालिफाई हुआ, उस लड़के का जो स्वप्न कि मैं डॉक्टर बनूं, ऊपर हट सकता, लेकिन परिवार ने प्रेशर किया, नहीं बनने दिया और पूरा भविष्य दूर। तो दो पीढ़ी के बीच जो अंतर बढ़ता है उसकी वजह ये है ईगो एंड एटीट्यूड, दोनों को समझना है। लेकिन जब टीनेज में होते हैं या अर्ली यूथ में होते हैं तब बच्चे कम समझते हैं, बड़ों को समझना ज्यादा समझते हैं। और ये लोग बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं, ये आप समझ लेना, स्वीकार भी लेना। ये जनरेशन का नाम मैंने रखा है टच स्क्रीन जनरेशन। ये टच स्क्रीन जनरेशन के हाथ में जो गैजेट्स है वो सभी टच स्क्रीन, तो उनका नेचर भी टच स्क्रीन बन गया है। अब उनका स्पर्श करो, हाउ वुड ही रिएक्ट, यू डोंट नो। मतलब उनको बुलाओ, कुछ मांगो उनसे, उनको कुछ कहो तो क्या रिएक्ट करेंगे आपको पता नहीं। व्हाट विल द डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन, यू डोंट नो। तो इनको बहुत हैंडल विद केयर है। ये नई जनरेशन है, वो HWC है, हैंडल विद केयर। तो साथ में बैठना, साथ में भोजन करना, समझाना करना, वो समय भी मांग लेगा और आपकी श्रद्धा भी मांग लेगा और आपका धैर्य की कसौटी भी करेगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ के लिए, दो जनरेशन के बीच जो गैप है वो कम करने का प्रयत्न सतत करते रहना। उसके लिए ये सुझाव जो मैंने अभी दिए, ईगो और एटीट्यूड कम करके मोर ऑफ लव, मोर ऑफ केयर, मोर ऑफ कंसर्न। और चौथी और अंतिम बात है जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में कि एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर देना। फैमिली डूज एंड डोंट्स बचपन से अपने बच्चों को सिखा दो। हमारे परिवार में ये हो सकता है, कभी हो सकता है, इसकी क्लैरिटी बचपन से बच्चों को चाहिए। व्यसन हो आपका, आपके कोई परिवारजन का, तो वो आपको छोड़ना है। वरना आपका 17-18 साल का लड़का या लड़की, उसने ये व्यसन चालू कर दिया, कुछ नहीं किया, चैरिटी फ्रॉम होम। तो डूज एंड डोंट्स जो आप अपने परिवारजन के पास अपेक्षित रखते हैं, जो आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में अपेक्षित रखते हैं, वो आपको भी फॉलो करना है। इफ यू टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू वॉच टीवी टिल लेट नाइट, हैव टू फर्स्ट डू इट। वरना वो बोलेंगे कि पापा तो ये एडवाइस करते हैं, ये माता जी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये तो फॉलो नहीं करते। ये बच्चे ये नहीं समझेंगे कि आप मैच्योर हो, आप एडल्ट हो, आप जीवन में सेटल्ड हो, तो
आपके लिए ये ज्यादा बर्बादी नहीं ला सकता है। बच्चे हैं वो लेट नाइट टीवी में जाएंगे तो वे अभी इतने मैच्योर नहीं है, वो अभी लाइफ सेटल होना बाकी है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बाकी है, वो भटक जाएंगे। लेकिन ये बात वो नहीं समझेंगे, इसलिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो मैंने एक दृष्टांत कहा। इस प्रकार की कई बातें हैं, कई बातों से ये दृढ़ होता है परिवार। तो एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना, कैरेक्टर बिल्डिंग क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी। मैं आपको एक प्रसंग कहूंगा कि वैल्यू सिस्टम की जब बात आती है तब आपके बच्चे एकेडमिकली क्वालिफाइड हो, स्मार्ट प्रोफेशनल हो, और उसके साथ एक वैल्यू सिस्टम उसके जीवन में हो, तो क्या पर्सनालिटी बनती है उसकी, और क्या गजब की उसकी प्रतिष्ठा सभी के बीच, अपने परिवार में, सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में उसकी बढ़ जाती। आप सभी ने केलाल का नाम सुना होगा, बड़े जादूगर थे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियंस। केलाल, सीनियर केलाल तो अभी उनका तो देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, अभी उनके लड़के जूनियर केलाल परफॉर्म कर रहे हैं। कई सालों पहले की ये बात है। ये केलाल और बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी राज कपूर थे, वे दोनों परम मित्र थे। केलाल और राज कपूर दोनों अच्छे मित्र थे, और यहाँ तक कि परिवार कभी साथ में घूमने दोनों जाते थे, परदेश यात्रा पे जाते थे हॉलिडे के लिए, एक दूसरे के घर मुंबई में आना जाना, डिनर के लिए बुलाते थे, बैठते थे। इतनी हद की अच्छे मित्रता। एक बार राज कपूर साहब ने कोई एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, वे होस्ट थे, और केलाल साहब को भी बुलाया। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल पार्टी। पार्टी के बीच जब महफिल चल रही थी तब आरके की दृष्टि पड़ी केलाल पे, और देखा कि पार्टी में सभी के हाथ में एक ग्लास है वाइन का, और केलाल साहब के हाथ में लेमन जूस है। आरके साहब सीधा वहां जा पहुंचे और केलाल साहब को कहा कि केलाल ये क्या है। केलाल साहब ने कहा मैं ठीक। आरके ने कहा यार सभी के हाथ में वाइन है और तू लेमन वाटर लेके बैठा है, कैसा लगेगा मेरा। केलाल ने कहा सब ठीक लगेगा, तू चिंता क्यों। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, अच्छी तरह से मतलब प्रेम भाव से बात कर रहे थे। आरके ने कहा नहीं, आज तो कुछ लेना पड़ेगा। केलाल ने कहा कि आप जानते हो आरके, मैं वाइन नहीं लेता, आगर छोड़। आरके ने कहा कि नहीं, आज तो मेरा प्रेम आपको रखना पड़ेगा, इतना कर चल। मैं आपको वाइन का ग्लास तो नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे वाइन में एक चम्मच डीप करके वो चम्मच मैं तेरे ग्लास में रख देता हूँ, इतना रख ले तो मैं इतना मान लूंगा कि तूने मेरा मान रखा। किरण ने कहा कि आरके इतना भी नहीं होगा। तब आरके ने कहा कि वो एक अंतिम शस्त्र उन्होंने उठा लिया आरके ने। एक्चुअली तो आरके ने कहा कि मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर का सौगन करके मैं आपको बात कर रहा हूँ कि। तब केलाल ने आरके साहब को बताया कि देखो, आप अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर की बात करते हो, लेकिन मैंने भी अपने पिताजी को सौगंध दी, मैंने भी उनको वचन दिया है कि मैं कभी अपने जीवन में नशा नहीं करूंगा, वाइन नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगा। ये मेरी एक कल्चर ट्रेडिशन मेरे परिवार में है, ये मेरा एक मेरे पिताजी को दिया हुआ वचन है। अब आप ही बताइए। केलाल ने आर के साहब को कहा कि आप ही बताइए अब मैं क्या करूं, आपके पिताजी का सौगंध की बात जो आपने कही वो मैं रखूं, या मेरे पिताजी को मैंने जो वचन दे रखा है वो मैं रखूं। तब आरके के अंतर में भी दृष्टि हुई, एकदम प्रेम भाव में आ गए और एकदम हक कर लिया केलाल को और बोले कि केलाल, आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू हु कैन स्टिक टू हिज वैल्यू सिस्टम, दैट्स ऑफ हिज एटमॉस्फियर। ये वातावरण के बीच अपनी वैल्यू सिस्टम साथ में। केलाल ने कहा कि मैं पार्टी में सभी के साथ रहूंगा, सभी को मिलूंगा, सभी से बातचीत करूंगा, और जब आपका लास्ट गेस्ट यहाँ से निकले पार्टी में से तब तक तेरे साथ रहूंगा, पूरा 2-3 घंटा रहूंगा, वो आप चिंता मत करना। लेकिन और मैं सभी के साथ खाऊंगा भी सही, मतलब वेजिटेरियन फूड भी लूंगा, चिंता मत करना, लेकिन लेट मी बी मी व्हाट आई एम, लेट मी व्हाट आई, दिस इज अ सिस्टम। किसी का अनादर नहीं है, किसी के प्रति हमें रोष या क्रोध नहीं है,
कोई लेते हैं खाते पीते तो उनके प्रति कोई हमारा कुभाव नहीं है, जिसकी जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, लेकिन एक वैल्यू सिस्टम, एक कैरेक्टर सिस्टम तो जीवन में डेवलप करनी। इसी प्रकार से झूठ न बोलना, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करना, ये सभी वैल्यू सिस्टम में आती है। कोई किसी के कोई पैसे लेना लेना, या किसी को हैरान न करना, या एक आपकी कंपनी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में ये शुद्धता पवित्रता रखना, ये सभी कुछ वैल्यू सिस्टम में आता है। कई बातें आती है, तो ये कई प्रकार की बातें वैल्यू सिस्टम में आपके परिवार में दृढ़ होनी चाहिए। फैमिली वैल्यू सिस्टम एंड बिजनेस वैल्यू सिस्टम। तो आपकी हमेशा व्यक्ति की दृष्टि से और एक बिजनेसमैन की दृष्टि से प्रगति तरक्की हमेशा होती रहेगी। दोनों प्रकार से व्यवसाय में और लोगों के हृदय में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाएगी। आज ये प्रश्न सुन के आपके सबके हृदय में केलाल एक जादूगर भी थे, लेकिन आज एक और भी छवि केलाल साहब की आपके हृदय में आ गई होगी कि इतने वैल्यू सिस्टम में वे। तो प्रमुख साईं महाराज हमारे गुरु, जिनकी शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, वे उनके एक अमृत अनुभव से बात करते थे कि घर में ये वैल्यू सिस्टम दृढ़ होने के लिए आपको घर सभा नित्य करना है। मतलब हफ्ते में 2 बार आप सभी परिवारजन आप साथ में बैठे फॉर स्पिरिचुअल सेशन। जैसे टीवी देखने में आप साथ में बैठते हो, भोजन के लिए साथ बैठते हो, तो एक स्पिरिचुअल सेशन के लिए भी साथ बैठना आधे घंटे के लिए हफ्ते में 2 बार। प्रथम 5 मिनट आप भगवान का नाम स्मरण करना और 10 मिनट रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता ऐसा कोई ग्रंथ उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और फिर 5 मिनट एक्सचेंज करना, क्या किसको क्या बात अच्छी लगी। I tell you, Ramayana and Mahabharata are so wonderful epics that any incident happening in your life has happened in Ramayana or Mahabharata somewhere. It straight away have social counseling, family counseling. और आज तो श्रीमद् भगवत गीता में से साइकोलॉजी वाले कुछ ग्रहण कर लेते हैं, मैनेजमेंट वाले को कुछ मिल जाता है, सोशल काउंसलिंग के लिए कुछ मिल जाता है, सभी को मिलता है। इतना विशाल और गहरा और इतना ऊंचा ग्रंथ ये उपदेश है। तो इसका पालन हमारे परिवार में थोड़े प्रतिशतों में भी अगर होगा, ये पूरे ज्ञान का, ये पूरे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का, तो भी परिवार में बहुत आनंद आए। श्रद्धा और भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। मैनी थिंग्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैंने तो कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी बहुत किए हैं देश प्रदेश में, और कई बड़े कॉर्पोरेट्स को, प्रोफेशनल्स को मिले हैं। You talk of the top management gurus, top corporate leaders, Bob Bendino, Stephen Covey, Ken Blanchard, Anthony Robbins, ये सभी ने अपने सेमिनार फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ और प्रोफेशनल्स को भगवान में श्रद्धा और भक्ति सिखाई है। अब स्टीफन कवी की बुक ले लो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये पुस्तक में जो एक सबसे जानी मानी मैनेजमेंट की दृष्टि से पुस्तक है, ये पुस्तक में अति सफल व्यक्ति की 7 आदतें उन्होंने वर्णन की है। आफ्टर 3000 सक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टीफन कवी ने लिखा है कि the 7th habit, that these people had the habit of connecting with their creator God through prayers every day। तब ये लोगों को आदत थी प्रार्थना, नाम स्मरण। आप ये प्रयोग करते ही होंगे, आप में भी श्रद्धा और भक्ति है, लेकिन अगर ना करते हो तो करना, एक प्रयोग के रूप में भी करना कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है। आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मुझे जरूर कहेंगे, या जरूर आपकी अंतरात्मा पुकारेगी कि इसका बहुत लाभ आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक जीवन में हुआ होता है। तो ये परिवार में संस्कार सिंचन की बात आती है। सिर्फ इट इज इजी टू एकेडमिकली क्वालिफाई योर चिल्ड्रन, इट्स डिफिकल्ट टू मेक देम गुड ह्यूमन बीइंग्स। आज जरूरत जमाने में ये है कि आप अपने बच्चों को, यू मेक देम स्मार्ट प्रोफेशनल्स एंड एट द सेम टाइम यू मेक देम वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये 5 बातें मैंने आपको जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में बताई। आई जस्ट समराइज इन 1 मिनट। 5 बातें पारिवारिक जीवन के आनंद में। प्रथम बात यह है, अंतर्दृष्टि हम करें कि मुझे कहाँ पॉजिटिव चेंज और इम्प्रूवमेंट, एक छोटी सी आदत में या विचार अभिगम में लाना है, ताकि मैं परिवार का अच्छा सदस्य बन सकूं, सभी को। ये प्रथम बात।
दूसरी बात, हमने एवरीमेंस मिशन नाम के पुस्तक के माध्यम से रेबेका क्लियर जो लेखिका है, उनके जीवन प्रसंग से ये समझी कि परिवार में मैं किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं रखूंगा, एटीट्यूड, ईगो का प्रश्न आने नहीं दूंगा, और सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम ही परिवार का संयोजन में माध्यम रहेगा। तीसरी बात हमने ये समझी, अजीत नाबर के प्रसंग से जनरेशन गैप आने की बात सुनी कि दो जनरेशन एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, इस समझने के लिए साथ में बैठे, साथ में बैठ के बात करें, आइडियाज फ्रीली एक्सचेंज करें, सजेशंस हो, एक्सप्रेशंस हो, उसकी फ्रीडम हो, परिवार में इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर, कल्चर क्रिएट हो। तो रोज रात को डिनर के बाद आप प्रेम से बैठ सकते हैं और किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं ताकि अच्छा एक एक्सचेंज हो, जनरेशन गैप कम। चौथी बात हमने ये सुनी केलाल साहब और राज कपूर साहब के प्रश्न से कि जीवन में वैल्यू सिस्टम, परिवार में कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रयत्न बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू academically well qualified your children, but you have failed to give good value system, they will progress. So चौथी बात ये है कि वैल्यू सिस्टम, और पांचवी बात भगवान में श्रद्धा और भक्ति। जैसे मैंने कहा 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और सर्वे पेपर्स प्रकट हुए हैं इंटरनेशनल सेमिनार्स में बाय मैन ऑफ साइंस और किसी भी प्रकार से भगवान के साथ अगर आपका अटैचमेंट हो प्रेयर से, नाम स्मरण से, तो आपको जीवन में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत लाभ होते हैं। एक छोटे से प्रसंग से मैं पूरा करूंगा कि क्या लाभ होता है। देखो, साइंटिफिकली मैं बात करूंगा भगवान की श्रद्धा के बारे में कि आप जब कोई प्रसंग आपको अनिच्छनीय बन गया, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, क्रोध आ गया, तब आपके ब्लड सिस्टम में दो हार्मोन्स सीक्रेट, कॉर्टिसोल होता है और एक एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स स्ट्रेस क्रिएट करने वाले होते हैं। आपको मन में गुस्सा आया, उस गुस्से की वजह से ब्लड में कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये स्ट्रेस बढ़ाते हैं, हार्ट रेट्स बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर ऊंचा जाता है। ये साइंटिफिक। उस वक्त अगर आप नाम स्वर में जुड़ गए, जो भी नाम, भगवान राम, भगवान कृष्ण का, भगवान स्वामीनारायण का, एक नाम स्वर में अगर आप जुड़ गए, तो उस वक्त मन शांत होना शुरू होता है। क्रोधित अवस्था में भी शांत होना शुरू। जैसे ही मन शांत होना शुरू होता है, तब एक और हार्मोन जिसका नाम है एंडोफिन, वो रिलीज होता है। जो एंडोफिन की ताकत होती है कि कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन की इफेक्ट को दबाने, मतलब स्ट्रेस कम करने की, ब्लड प्रेशर कम करने की, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल लाने की, और हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मल लाने की। तो ये एंडोफिन जब रिलीज होता है, तब वो कॉर्टिसोल को मारता है, एपिनेफ्रिन को भी मारता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, इसलिए मैंने आपको सब नामाभिकरण किए, मतलब सब नाम भी हार्मोन्स के दिए। तो भगवान के नाम स्मरण में इतनी ताकत है, आपको शांत कर सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है, आपको क्रोधित अवस्था में से काम कूल डाउन कर सकता है। ऐसी तो हजारों बात। तो ये पांचवी बात मैंने आपको बताई कि आपके परिवार में ये पांच बातें आप रखना। तो दैट इज चॉइस ऑफ फैमिली लाइफ। माय इनरमोस्ट प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए प्रार्थना है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना है कि हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज और हमारे प्रगट गुरु हरिमोहन साईं महाराज के आशीर्वाद आपसे बरसते रहे, और आप सुखी हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Swamiji. One question I've got from somebody on Facebook was during the lockdown, there have been a lot of issues in family because everybody is there and children are working, studying from home. So there are a lot of, you can say, like space is less and people are not able to move out. So there is a lot of confusion and parents and kids in between are facing issues in handling. They are not able to give space. How to handle this, seeing further also, like schools are yet to open for another 3 months. So how to handle this? Yeah, the question is very right, because sometimes you have a 2-room apartment, you have a 1-room kitchen apartment.
सो फिजिकल स्पेस भी कम है और एकांत नहीं मिल रहा है, तो मेंटल स्पेस भी कम होती जा रही है, तो थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा तनाव, इसके बीच ही ये दो बात आती है, नंबर 4 और नंबर 5, जो दो बातें मैंने बताई, कि साथ में बैठ के एक्सचेंज करके, डिस्कशन करके, रोज ऐसे ही कोई ना कोई टॉपिक पे बात शुरू कर देना। कभी कोई स्पोर्ट्स हो, कभी पॉलिटिक्स भी हो, कभी सोशल सिचुएशंस, कभी कोई ऐसे सत्य हो, एटीट्यूड हो, उसके बारे में ऐसे ही चर्चा करना, एक्सप्रेशंस, इससे एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट होगी। और जब वैल्यू सिस्टम क्रिएट होगी तो फिजिकल या मेंटल स्पेस, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, अभी जो कोविड-19 की है, उस वक्त भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से, श्रद्धा से समझे पाए। और जो 5वीं बात मैंने बताई थी, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करवाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन इससे थोड़ा फ्रिक्शन फैमिली मेंबर्स में कम हो जाएगा, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बढ़ जाएगा। देखो, आपका जो प्रश्न है उसमें प्रश्न यही है कि लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कम है और लेवल ऑफ टॉलरेंस कम है। तो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेवल ऑफ टॉलरेंस बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था, और वो सर्वे पूरे विश्व में 10-15 सालों तक चला था, और 1 लाख से ज्यादा परिवार across caste and gender, and they came to a conclusion that those families, this is the one-line answer to the question. So listen carefully. And they came to a conclusion that those families in which they have regular religious sessions, at least twice a week, all the family members are coming together, sitting together, and having some religious and spiritual sessions. The level of tolerance and level of acceptance was much better. तो अध्यात्म से ये स्पेसिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। थैंक यू। Thank you, Swamiji. One more question from Mr. Narendra Lakhotia ji. He's asking, joy of family is how much important or depend on your professional success? Absolutely dependent. दो शब्द में अगर उत्तर में दूं तो इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट। प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो पैसे का प्रॉब्लम घर में रहेगा, और जब पैसे के प्रॉब्लम रहेंगे, दैनिक खर्च का प्रॉब्लम, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस के लिए पैसे की कमी रहेगी, या कुछ आप डेट में आ जाएंगे। तो इफ यू आर प्रोफेशनली नॉट सक्सेसफुल, that means successful, by the word I mean that reasonable money earning that could make your family comfortable. ये दो शब्द मैंने यूज किए, reasonable and making your family comfortable money wise. मैं लग्जरी की बात नहीं कर, लग्जरी तो नसीब में हो तो आती है, रहती है, जाती है, वो अलग बात, लेकिन रीजनेबल मनी अर्निंग टू bring your family in at least मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कंफर्ट लेवल, ये तीसरी बात। मिडिल क्लास कंफर्ट लेवल या अपर मिडिल क्लास कंफर्ट लेवल में तो लाने का जरूर प्रयत्न करना, ताकि मनी के प्रॉब्लम ना हो, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, झगड़े, फ्रिक्शन, भविष्य की चिंता, ये सब मिट जाएंगे। तो जॉयज ऑफ फैमिली के लिए प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ में एटलीस्ट कंफर्ट लेवल तक सक्सेस होना वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। Thank you, Swamiji. We don't have any questions further. It was really great. So I'll request Saharsh, are you there? You have to please take it further. So with this, we come to the end of our motivational webinar session today. I would like to thank Swamiji on behalf of the entire dealer fraternity who has been watching this webinar and has taken back learnings, and as mentioned by Swamiji, the 5 points which needs to be kept in mind for a successful family life and to bring out joy in every moment we live in. With this, we would like to thank you, Swamiji, once again for taking out time and devoting an hour to the dealer fraternity.
No thanks, no thanks, because like it's caring and sharing for each other, and it's always a moral responsibility of a saying. संत की एक नैतिक जिम्मेदारी है समाज में कि समाज में अच्छे विचार देना, अच्छा वर्ताव लोगों को सिखाना, and to better the lives of people. हम तो कुछ we never charge for it. I've been talking since more than 25 years. I have not charged a single penny from anybody. क्योंकि हम पैसे रखते नहीं, ये पैसे हमारे पास है भी नहीं. तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि समाज को देना, अच्छे विचार देना, क्योंकि at the end of the day, a man is a bundle of his own thoughts. As simple as that. तो अच्छे विचार से, अच्छे सद्गुण की प्राप्ति से व्यक्ति का जीवन अच्छा बन सकता है. तो हमारे पास ये वैल्यू सिस्टम की डीलरशिप है, जैसे आपके पास कई प्रकार की कार्स की डीलरशिप है. तो हमारे पास ये अच्छे विचार की और अच्छे वैल्यू सिस्टम की डीलरशिप है, हम देते रहते हैं. Sir, just a sec, एक और question आ गया. I'll ask Swamiji, please. So it's a question from Mr. Dilip Pun Reddy. He's asking, delegation and relegation to a younger generation is always debatable. Please advise. It will always remain debatable, yet you have to delegate and delegate. Proportions में, percentages में, करना तो पड़ेगा. एक बार आपका लड़का MBA करके आपके पास बिजनेस में ज्वाइन हो गया, आपने अपने शोरूम में बाजू में एक ऑफिस उसके लिए क्रिएट कर दी और उसको बैठा दिया, तो डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा. पावर्स तो डेलीगेट करने ही पड़ेंगे. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना चाहते हो लेकिन पावर्स डेलीगेट करना नहीं चाहते हो. तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन रन विदाउट पावर. सो डिबेटेबल, पृथ्वी पे सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये डिबेटेबल टॉपिक है. दो जनरेशन के बीच का कितना डेलीगेट करूं, कब करूं, कितने पावर्स दूं ना दूं, ये डिबेटेबल तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना तो पड़ेगा ही. That is the answer. Thank you so much. Yeah, sir, please. So before ending this, sorry, answer ठीक लगा आपको? Thank you once again, still, Swamiji, from all of us at FADA. So before ending this session, I would just like to remind all our participants that tomorrow at 12:30 p.m. we have our session with Dr. A. Velumani of Thyrocare. I hope you have registered. If not, then kindly register now so that you can enjoy another session brought to you by FADA Academy. Thank you and have a good day. My many prayers for all of you. आशीष जी, मनीष जी, सहर्ष जी, आप सभी को मेरा नमस्कार. Thank you, Swamiji. Thank you so much. आपका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा. Thank you, friends, for all attending. Fine, चलो मिले तो आज अच्छी बात. Take care. So I will end this session now. Yeah, thank you.